Good morning, students. हम लोग शुरू करते हैं। आज से हम लोग फैमिली स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। सिलेबस की कॉपी आप लोगों को भेजी हुई थी, आप उसमें देखना। हम पहली फैमिली शुरुआत कर रहे हैं आज पढ़ने के लिए, जिसका नाम है मालवेसी फैमिली। कॉमनली इसे मालव फैमिली भी कहा जाता है। मालव फैमिली भी कहा जाता है इसे। और ये जो फैमिली है, ये फैमिली में पूरे वर्ल्ड में करीब करीब 244 जेनेरा मिलते हैं और 4225 स्पेसीज इसके अब तक रिपोर्ट किए गए हैं। इंडिया में 244 में से 82 जेनेरा मिलते हैं और 1500 स्पेसीज अब तक रिपोर्ट किए गए हैं मालवेसी फैमिली से। ये जो फैमिली है, इसका जो सिस्टमैटिक पोजीशन है, हम लोग फैमिली का सिस्टमैटिक पोजीशन जो होता है वो बेंथम एंड हुकर के सिस्टम के हिसाब से इसे क्लासिफाई करते हैं। बेंथम एंड हुकर का सिस्टम जो है वो एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है और ये क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये प्लांट डिवीजन फेनरोगेम्स में आता है। फेनरोगेम्स का कैरेक्टर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद में इसका क्लास है डाइकोटिलीडॉन। डाइकोटिलीडॉन के कैरेक्टर होते हैं सीड्स विथ 2 कोटिलीडॉन्स, यानी सीड 2 हिस्सों में बट जाती है, बट सकती है, इसलिए इसे डाइकोटिलीडॉन कहा जाता है। फिर टैप रूट सिस्टम होती है। हमने कैरेक्टर स्टडी करते वक्त देखा था कि डाइकॉट का कैरेक्टर है टैप रूट सिस्टम। फिर रेटिकुलेट वेनेशन इसमें होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। और फ्लावर इसमें पेंटामेरस होता है। मैंने आप लोगों को हेलो काय लागत नहीं। हाँ बेटा, त्याच्यावरची जी लिंक आहे ना, त्या लिंक वरती क्लिक कर, डायरेक्ट जॉईंट होशील तू। मग पासवर्ड तिथं आयडी आणि पासवर्ड दिलेला आहे ना बेटा। नाही, त्याच्यातनं पूर्ण बाहेर निघ आणि पुन्हा एंट्री कर। Sir, please show the screen from beginning. एक मिनट। हेलो सर, मैं देखता हूँ और तुम चलने दो तुम्हारा लेक्चर। Listen, we are going to study the first family in our syllabus. The family is known as Malvaceae family, and commonly this family is also known as Mallow family. In all total, 244 genera with 4,225 species are reported up to this from entire world, while in India, this family is represented by 82 genera and 1,500 species. The systematic position of this family is it includes in division Phanerogames, means it is a flowering plant. Obviously, this is a flowering plant. Its class is Dicotyledon. The seeds are with 2 cotyledons, taproot system, reticulate venation. These are the characters of Dicotyledon. And again, the flowers are pentamerous. During this time of study of general characters, I told you that few flowers are there, they shows pentamerous condition, while in monocot, trimerous condition is there. Pentamerous means
the flower consists all the floral whorls in number of 5 or multiple to 5. If calyx are 5, corolla also contain 5 number, androecium are also in 5 number, and gynoecium is also in 5 number. If they are in 5 number or multiple to the 5 number, just like 10, 15, 20, 25 and so on, such type of flowers which consist the floral parts in number of 5 or multiple to the 5 are known as pentamerous flowers. Now the subclass is polypetally, means petals are free, they are not fused with each other. This is known as polysepalous condition, petals are free. Series Thalamiflory. In Thalamiflory, the flowers are hypogynous. We know that 3 types of flowers are there: hypogynous, epigynous and perigynous. Hypogynous means superior ovary. Stamens and pistils are many, means gynoecium are indefinite in number. Distinct sepals free from ovary. The sepals are free from ovary, means calyx are free from ovary. Order Malvaceae, order Malveles, in this polycarpellary syncarpus superior ovary is present. Poly means many, indefinite number of carpels means gynoecium are present, so it is known as polycarpellary. Syncarpus means all these carpels are united with each other, so it is known as syncarpus condition, and its position is superior. The family Malvaceae. The main character of Malvaceae is epicalyx is present. Yesterday I told you in entire Bentham and Hooker system of classification, only one family is there which consists epicalyx, and this is Malvaceae family. So epicalyx is a distinguishing character or identical character of this family. Always remember this sentence: the epicalyx is present, which is a distinguishing or identical character of family Malvaceae. In exam, they might be asked you a question that dash dash is a identical character of family Malvaceae. The answer will be epicalyx. Or question may be asked in reverse manners. Epicalyx is a characteristic feature of dash dash family, means Malvaceae family. Then in stamens, monoadelphous condition is present. Monoadelphous means here many filaments are present, and all these filaments are united together to form a single bunch. So it is known as monoadelphous. Mono means single and adelphous means bunch. All filament unite together to form a single bunch. So this is known as monoadelphous condition, and this is also an identical character of this family. You have to remember 2 identical characters of this family. Epicalyx is present and stamens monoadelphous. This is about systematic position of this family. Now, the common plants which are present in our area. अब ये common plants जो है हम लोगों ने देखा करीबन 1500 स्पेसीज, 1500 स्पेसीज पूरे इंडिया में के अलग अलग पार्ट में रिकॉर्ड की गई है. मगर हमारे एरिया में पर्टिकुलरली इन नवापुर एरिया जो प्लांट बहुत कॉमन है उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है यहाँ पर, और इसमें एक आध दूसरा प्लांट ऐसा भी है जो हमारे एरिया में कॉमन नहीं है मगर मेडिसिनल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है. ऐसे कुछ प्लांट्स मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं. एक प्लांट है हिबिस्कस एंड्यूलोसस. ये प्लांट हमारे एरिया में कॉमन नहीं है, इसके लिए इसका कॉमन नेम भी मैंने नहीं दिया है. हिबिस्कस कैसिसस, इसका कॉमन नेम है सिसवंद.
ये प्लांट हमारे एरिया में कॉमन है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसे हम लोग जासूद या जसवंत कहते हैं, हिंदी में इसे कुसुम कहा जाता है। हिबिस्कस माइक्रेंथस बेलपाटा इसे मराठी में कहा जाता है। यहाँ पर जो भी नाम दिए हैं ये मोस्ट ऑफ मराठी में दिए गए हैं। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस वैरायटी गांधी, पांढरी जासवंत, जैसा हम लोग लाल या पीली जासूद देखते हैं वैसी एक सफेद कलर में भी आती है, जिसको वैरायटी गांधी कहा जाता है। थिस्पेसिया पॉपुलिना पारस पीपल नाम का एक प्लांट होता है। गॉसिपियम हर्बैटम कपास, जिससे हम कॉटन तैयार करते हैं। एबिचुलम इंडिकम पेटारी या मुद्रा ये नाम से जाना जाता है। और अल्थेसिया रोजिया ये हॉलीहॉक के नाम से जाना जाता है। अभी ये सभी प्लांट्स के एक्चुअल पिक्चर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये प्लांट है साइडा एक्यूटा, ये हमारे एरिया में बहुत कॉमन प्लांट है, बरसात के दिनों में भी दिखाई देता है, फॉरेस्ट में मिलता है। इसके ये जो प्लांट होता है ये हर्ब होता है और यहाँ पर इसके येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। इसके मेडिसिनल वैल्यू मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा प्लांट होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसके कई सारे कलर वेरिएशन और शेप्स इसके करोला में हमें मिलते हैं। नवापुर में भी इसमें से काफ़ी प्लांट्स कॉमनली मिलते हैं, जैसा रेड, येलो, वाइट कलर का हिबिस्कस, फिर ये थोड़ा सा पर्पलिश कलर का, और ये थोड़ा सा करोला बाइफर्केट हुए करोला के जैसा दिखाई देता है। ऐसे कई सारे, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे हिबिस्कस में कलर्स हमारे एरिया में मिलते हैं। वो अगर देखें तो यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है अलग अलग कलर्स में। इवन आप येलो कलर भी देखेंगे तो येलो कलर में फेंट येलो, डार्क येलो, ऐसे वेरिएशंस इसमें दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत सारे हिबिस्कस के वैरायटीज, वेरिएशन ऑफ कलर्स हमारे एरिया में दिखाई देते हैं। ये एक अलग ही हिबिस्कस का कलर है, हमारे एरिया में तो नहीं दिखाई देता है, मगर है बहुत ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग, इसलिए इसका फोटोग्राफ मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ब्लू कलर का हिबिस्कस है, ये हमारे एरिया में नहीं मिलता है, मगर दिखने में मोस्ट अट्रैक्टिव लगता है। उसमें और एक थोड़ा अलग वैरायटी है, ये हम जैसा देखते हैं कि यहाँ पर परफेक्ट पेंटामेरस कंडीशन है, 5 कैलिक्स, 5 करोला, एंड्रोशियम 5, गाइनोशियम 5, ऐसा 5 के मल्टीपल में एक फ्लावर होता है। ये भी ब्लू कलर में है, ये भी हिबिस्कस ही है। ये ऐसा हिबिस्कस कुछ एरिया में पाया जाता है, हमारे इधर नहीं मिलता है मगर। फिर उसके बाद आता है मालवा नाम का प्लांट, ये भी फॉरेस्ट में मिलने वाला प्लांट है। हर्ब है, ये छोटा सा प्लांट होता है, इसके फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और थोड़ा सा स्मेल भी अच्छा होता है इसका। फिर उसके बाद आता है एबिचुलॉन इंडिकम, इसे हम लोग मराठी में पेटारी कहा जाता है या मुद्रा भी कहा जाता है कुछ एरिया में। ये प्लांट जो होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके फ्रूट्स यहाँ पर बताए गए हैं। ये जो फ्रूट्स है पुराने जमाने में कपड़ों के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए इसके ड्राई फ्रूट्स का यूज किया जाता था, इसको प्रिंट के तौर पर यूज किया जाता था। मेडिसिनली ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या है ये हम लोग आगे चलकर देखेंगे। उसके बाद आता है गॉसिपियम हर्बैटम। गॉसिपियम हर्बैटम को कॉमनली हम लोग कपास का प्लांट कहते हैं। ये कपास का प्लांट जो होता है इसके फ्लावर्स येलोइश कलर के होते हैं और इसमें से इस तरीके से कॉटन बॉल्स फिर तैयार होते हैं। इसके भी यूजेस हम लोग आगे चलकर देखेंगे। उसके बाद आता है अल्थिया रोजिया, इसे कॉमनली यहाँ पर हॉलीहॉक कहा जाता है। हॉलीहॉक का फ्लावर नवापुर में बहुत जगह पर मिलता है। इसमें बहुत सारे कलर वेरिएशंस होते हैं, करीबन 6-7 कलर इसमें मिलते हैं, वाइट, पिंक, रेड, पर्पल रेड, ऐसा फिर पिंकिश वाइट, ऐसे करीब करीब 6-7 कलर इसमें दिखाई देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही प्लांट पर 3-4 कलर के फ्लावर्स इसमें आ जाते हैं, तो इसलिए इसे गार्डन में
ब्यूटीफुल या शोई प्लांट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है थिस्पेसिया पॉपुलिना। थिस्पेसिया पॉपुलिना, इसे कापुर भेंड या पारस भेंड भी कहा जाता है। इसके फ्लावर्स और फ्रूट यहाँ पर बताए गए हैं। ये एक हर्बेशियस प्लांट है, हर्ब होता है ये, और इसके फ्लावर्स व्हाइटिश येलोइश कलर के होते हैं। ये हमारे एरिया में मिलने वाले जो कुछ कॉमन प्लांट थे वो यहाँ पर फोटोग्राफ्स में बताए गए थे। उसके बाद आता है ये प्लांट कहाँ कहाँ पर मिलता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोगों ने जो एक एक कैरेक्टर स्टडी किए थे, वो एक एक कैरेक्टर के हिसाब से ये प्लांट या ये फैमिली हम लोग डिस्क्राइब करते जाने वाले हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि ये प्लांट कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि ये हर जगह पर, दुनिया के हर हिस्से में ये प्लांट पाया जाता है, और इंडिया में भी इसकी बहुत सारी स्पेसीज मिलती है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि करीब करीब 1500 स्पेसीज ये प्लांट की मिलती है, यानी कितना वेरिएशन इसके कलर्स और स्ट्रक्चर में हो सकता है। जितना वेरिएशन या जितने प्लांट्स ज्यादा होते हैं उतना उसके कैरेक्टर्स में भी वेरिएशन हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग इसका हैबिट स्टडी करेंगे। ये जो फैमिली है, ये फैमिली में जो प्लांट्स मिलते हैं, ये प्लांट में तीनों टाइप के प्लांट ये फैमिली में मिलते हैं। इसमें हर्ब्स भी है, श्रब्स भी है और ट्रीज भी है। ये फैमिली में एन्युअल और पेरेनियल दोनों टाइप के प्लांट्स यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि एक साल में लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाले एन्युअल और 2 से ज्यादा साल में लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाले पेरिनियल्स। जैसे कि कपास का जो झाड़ है, या मैंने अभी आपको मुद्रा या पेटारी नाम का जो झाड़ बताया जिसका नाम था एबिचुलॉन इंडिकम, ये सब प्लांट्स जो है ये एन्युअल प्लांट होते हैं। एक ही साल में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। मगर इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसे हम लोग जासूद कहते हैं। ये जासूद का जो प्लांट है ये सालों साल जीता है, सालों साल टिकता है। मनीष वळवी, स्क्रीनवर छेडछाड नको करो। पेरेनियल प्लांट्स होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये 2 से ज्यादा साल तक जीता है। ये हुआ ये फैमिली का हैबिट, जिसमें हर्ब, श्रब और ट्रीज तीनों टाइप मिलते हैं। एन्युअल्स और पेरिनियल्स, ये 2 टाइप की लाइफ साइकिल वाले प्लांट ये फैमिली में होते हैं। ये फैमिली का जो रूट होता है ये टैप रूट सिस्टम होता है, जिसमें बहुत सारी ब्रांचिंग होती है। यहाँ पर बताया गया है ये सेंटर में एक मेन रूट है, ये प्राइमरी रूट है, और फिर उसके इर्द गिर्द कई सारी ऐसी ब्रांचेस दिखाई देती है, सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स ऐसा। और ये जो रूट सिस्टम होती है ये डाइकॉट की कैरेक्टरिस्टिक रूट सिस्टम होती है, जो टैप रूट सिस्टम होती है। इसका जो स्टेम होता है, ये स्टेम हमेशा इरेक्ट होता है, यानी ये फैमिली में क्लाइंबर एक भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सीधा ऊपर की ओर या सीधे तरीके से बढ़ने वाला स्टेम इसमें होता है, जिसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं द स्टेम इज इरेक्ट। हर्बेशियस और ऊड़ी दोनों टाइप की पॉसिबिलिटीज ये फैमिली में होती है, यानी प्लांट्स जिनके पास से हमें लकड़ा या ऊड़ नहीं मिलता है और प्लांट्स जिनसे हमें ऊड़ मिलता है, यानी हर्बेशियस प्लांट भी इसमें होता है और ऊड़ी प्लांट भी इसमें होता है। जैसे कि थिस्पेसिया पॉपुलिना है या अल्थेसिया रोजिया है, ये प्लांट्स जो है ये हर्बेशियस प्लांट है, इनसे कभी भी हमें ऊड़ नहीं मिलता। मगर हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो प्लांट है, जासूद जिसे कहते हैं, इससे हमें थोड़ा बहुत लकड़ा मिलता है, जैसे जलाने के वगैरह काम आता है। ये ब्रांचिंग बहुत होती है ये प्लांट्स में, सिलेंड्रिकल होता है, यानी गोल राउंडेड प्लांट ये होता है। यहाँ पर हमने देखा था कि फ्लैट और चौकोनी यानी स्क्वेरिश स्टेम होते हैं, सिलेंड्रिकल, फ्लैट और स्क्वेरिश। यहाँ पर सिलेंड्रिकल स्टेम होता है। फिर सॉलिड होता है, यानी हमने देखा था कि कुछ ऊड्स ऐसे होते हैं या कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो बीच में से खाली या एम्प्टी होते हैं, जिन्हें हॉलो कहा जाता है। यहाँ पर मगर वैसे एम्प्टी स्टेम नहीं होते और इसके ऊपर स्टीलेट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं।
अब ये स्टिलेट हेयर्स क्या चीज होती है, इसके स्टेम को अगर माइक्रोस्कोप अगर हम देखें तो ये स्टेम के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हेयर्स अगर प्रेजेंट है स्टेम पर तो उसे हेयर ही कहेंगे, और बिल्कुल स्मूथ है तो उसे ग्लैब्रस कहेंगे। यहाँ पर स्टेम के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और ये हेयर्स जो होते हैं वो स्टार शेप्ड होते हैं। स्टिलेट का मतलब होता है स्टार शेप्ड। माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर स्टार शेप्ड हेयर्स ऐसे हमें दिखाई देते हैं, जो बहुत ब्यूटीफुली दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। ऐसे स्टिलेट हेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम में अगर स्टिलेट हेयर ये वर्ड याद नहीं आता है तो स्टार शेप्ड हेयर्स भी लिखे तो भी फुल मार्क मिलते हैं। वो उसका सिनोनेम है या अल्टरनेटिव नेम है। ये फैमिली में मिलने वाले स्टेम का कैरेक्टर होता है। फिर उसके बाद में आता है लीव्स। लीव्स में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सिंपल लीव्स होता है। ये जो लीफ आप लोग देख रहे हैं, ये लीफ के बीच में यहाँ से मिडरिप आ रही है और दोनों साइड में लैमिना है। ना तो मिडरिप डिवाइड हो रही है ना लैमिना डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर दोनों साइड में इंटैक्ट यानी फुल लैमिना प्रेजेंट होता है। ऐसे लीफ को सिंपल लीफ कहा जाता है। अब ये लीफ की जो अरेंजमेंट होती है इसे अल्टरनेट यानी फाइलोटैक्सी, लीफ के अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी कहा जाता है। और फाइलोटैक्सी जो होती है वो अल्टरनेट होती है। ये अल्टरनेट किस तरीके से होती है, देखिए यहाँ पर ये नोडल रीजन प्रेजेंट होता है और ये नोडल रीजन के दोनों साइड में लीफ आने चाहिए थे, मगर यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड में लीफ आ रहा है, दूसरी साइड डेवलप नहीं होती है। यानी एक नोड पर एक लीफ अराइज हुआ, उसके दूसरे नोड पर इसके विरुद्ध दिशा में दूसरा लीफ अराइज होगा, फिर उसके ऊपर उसके विरुद्ध दिशा में दूसरा लीफ अराइज होगा। और ये ऐसी जो सिचुएशन होती है, एक से दूसरा अल्टरनेट है, दूसरे से तीसरा अल्टरनेट है। ये जो अल्टरनेट सिचुएशन में लीव्स स्टेम पर अराइज होते हैं इसे अल्टरनेट फाइलोटैक्सी कहा जाता है। ये अल्टरनेट फाइलोटैक्सी यहाँ पर मालवेसी में दिखाई देती है। फिर लीव्स जो होते हैं वो स्टिप्यूलेट लीव्स होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा स्टिप्यूल ब्राउन कलर का दिखाई देगा। हर लीफ के नीचे, ये फिगर में भी देखेंगे आप लोग, हर लीफ के नीचे ऐसा ब्राउनिश कलर का स्टिप्यूल आप लोगों को दिखाई देगा। ये स्टिप्यूल होने के वजह से ये लीफ को स्टिप्यूलेट लीफ कहा जाता है। मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन है यहाँ पर। ये डाइकॉट है तो वेनेशन रेटिकुलेट ही होगा। यहाँ पर ये सेंटर से जो मिडरिप निकल रही है, ये मिडरिप में यहाँ पर आगे डिवाइडेशन होता है और एक से ज्यादा मिडरिप यहाँ पर फॉर्म होती है, इसलिए इसे मल्टी कॉस्टेट कहा जाएगा। मल्टी का मतलब बहुत सारे और कॉस्टा मतलब मिडरिप। मिडरिप का ही एक नाम है कॉस्टा। तो मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ पर मिलता है। हमने लीफ में क्या क्या कैरेक्टर देखे, लीव सिंपल है, अरेंजमेंट उनकी यानी फाइलोटैक्सी अल्टरनेट है, राउंडेड और पामेटली डिवाइडेड है, स्टिप्यूलेट है, हर लीफ के नीचे ब्राउनिश कलर का छोटा सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो इसे स्टिप्यूलेट कहा जाएगा। और वेनेशन में मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन ये फैमिली में प्रेजेंट होता है। ये हुआ लीव्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसका इन्फ्लोरेसेंस यानी फ्लावर किस तरीके से अराइज होते हैं, उसे इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। इन्फ्लोरेसेंस की सिंपल डेफिनेशन है, द फ्लावर बियरिंग एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। और ये जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। अब ये हर टर्मिनोलॉजी को आप लोग गौर से सुनिए। सॉलिटरी का डिक्शनरी मतलब होता है, मीनिंग होता है अकेला, वन ओनली। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये हिबिस्कस का फ्लावर बताया गया है यहाँ पर, और ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस पर यानी ये इन्फ्लोरेसेंस के डंडी के ऊपर एक ही फ्लावर होता है। यहाँ पर कभी भी 2 या 3 फ्लावर नहीं होंगे। और
दूसरी इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या होती है, ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के साइड में कभी भी नहीं आता है ये फ्लावर, ये सीधा इसके ऊपर आने के वजह से यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस की ग्रोथ जो होती है, यानी इन्फ्लोरेसेंस जो बढ़ते रहता है वो बढ़ना सडनली रुक जाता है, और ये इन्फ्लोरेसेंस की ग्रोथ यहाँ पर रुकने के वजह से ये यहीं पर रुक स्टॉप हो जाता है। ऐसा जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होता है, जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के ऊपर एक ही फ्लावर आता है, उसे सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। और ये जो सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस जो होता है ये टर्मिनल होता है। टर्मिनल का मतलब होता है ये आखिरी छोर पर, आखिरी पॉइंट पर आता है, इसलिए इसे टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। सॉलिटरी, एक्सिलरी एंड टर्मिनल साइम, ये फैमिली में ज्यादा से ज्यादा प्लांट में मिलने वाला इन्फ्लोरेसेंस होता है। क्या क्या बोला मैंने? सॉलिटरी, एक्सिलरी, टर्मिनल, साइम, ये फैमिली का इन्फ्लोरेसेंस होता है। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, डिस्क्राइब द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली मालवेसी। तो सिर्फ एक लाइन लिखना है, सॉलिटरी, टर्मिनल, एक्सिलरी, साइम, इसके ऊपर फुल मार्क आपको मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे ये फैमिली का एक मिनट, ये फैमिली का फ्लावर हम लोग स्टडी करेंगे। इसका जो फ्लावर होता है, पहले हम लोग क्या लिखा है वो देखेंगे। द फ्लावर्स आर यूजुअली पेडिसिलिएट, यानी फ्लावर जो होता है एक लंबे से, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये फ्लावर एक लंबे से स्टॉक के ऊपर अराइज होता है, इसे कहा जाता है पेडिसिलिएट फ्लावर। फिर उसके बाद ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल दोनों प्रेजेंट होती है यहाँ पर ये फ्लावर के नीचे अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये फ्लावर का ब्रैक्ट होता है, यानी फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है। और यहाँ पर ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो देख रहे हैं आप लोग, इधर वाले फोटोग्राफ में ज्यादा अच्छा है, ये ऊपर की ओर रेड कलर का करोला है, उसके नीचे ये ग्रीन कलर का कैलिक्स है, और कैलिक्स के नीचे आप लोग ऐसा एक लिग्यूल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं। 1 2 3 4 ये फोटोग्राफ में 4 दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये ब्रैक्टियोल्स मॉडिफाई होते हैं, ब्रैक्टियोल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई होता है, और ये मॉडिफाई हुए स्ट्रक्चर को इपीकैलिक्स कहा जाता है। ये जो इपीकैलिक्स है, ये इपीकैलिक्स सिर्फ और सिर्फ मालवेसी फैमिली में ही मिलता है, इसलिए ये मालवेसी फैमिली का आइडेंटिकल कैरेक्टर बनता है। हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रैक्टियोलेट, यानी ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट है। The bracteoles are arranged in a whorl known as epicalyx. ये ब्रैक्टियोल्स मॉडिफाई होकर एक सर्कल में यानी एक होर्ल में अरेंज होते हैं, इसे इपीकैलिक्स कहा जाता है। ये जो फ्लावर है ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है। जासूद के या मालवेसी फैमिली में मिलने वाले कोई भी फ्लावर को किसी भी एंगल से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसमें से 2 इक्वल हॉल्स, 2 इक्वल पार्ट्स हमें मिलते हैं। ऐसे फ्लावर को हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, यानी एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये फोटोग्राफ में आप लोग देख सकते हैं, सेंटर में फीमेल सेक्स ऑर्गन है गाइनोशियम, और उसके इर्द गिर्द एंड्रोशियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। कंप्लीट फ्लावर है ये। कंप्लीट फ्लावर का मतलब होता है फ्लावर में टोटल 4 होल्स होते हैं, ये हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम।
ये चारों के चारों होल्स ये फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। मालवेसी का किसी भी फ्लावर को अगर हम लेते हैं तो उसमें चारों के चारों होल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम चारों एक ही जगह पर प्रेजेंट है, इसलिए इसे कंप्लीट फ्लावर कहा जाएगा। फिर आता है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब होता है ये जो गाइनोशियम है, ये गाइनोशियम के नीचे से बाकी के फ्लोरल पार्ट्स आते हैं। जैसे कि ये कैलिक्स है, ये करोला और एंड्रोशियम, ये गाइनोशियम के नीचे अरेंज होते हैं, इसलिए इसे हाइपोगाइनस फ्लावर कहा जाता है या सुपीरियर ओहरी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है पेंटामेरस फ्लावर। यहाँ पर हर सिचुएशन, हर होर्ल में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फिर वो कैलिक्स हो, करोला हो, एंड्रोशियम हो या गाइनोशियम हो, ये 5 या 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये फ्लावर को पेंटामेरस फ्लावर कहा जाता है। अब इसके फ्लावर की ओर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ये ग्रीन कलर के कैलिक्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जो कैलिक्स होता है इसे सेपल कहा गया है। फिर उसके बाद में ये कलरफुल जो होते हैं ये पेटल्स होते हैं, और ये पेटल्स के बाद में यहाँ पर एंड्रोशियम प्रेजेंट होता है और लास्ट में गाइनोशियम प्रेजेंट होता है। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है मालवेसी फैमिली में से। फिर उसके बाद आता है कैलिक्स। अब हम लोग चारों होल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे ये फैमिली में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि टोटल 1 2 3, यहाँ पर नीचे एक पिक्चर दिया गया है, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 कैलिक्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यानी 5 सेपल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इट कंसिस्ट 5 सेपल्स। गैमोसेपेलस, गैमोसेपेलस का मतलब होता है ये जो कैलिक्स है ये नीचे की ओर देखिए आप लोग तो सभी आपस में यूनाइट हो गए हैं। इवन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये सभी के सभी यूनाइट होते आपस में, फ्यूज हो जाते हैं आपस में, इसलिए इसे गैमोसेपेलस कंडीशन कहा जाता है। सेपेलॉइड कहा जाता है, एक वर्ड है। कभी कभी कैलिक्स जो होता है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें करोला डल कलर का होता है, उसमें कोई स्मेल भी नहीं होता है। करोला का मेन फंक्शन होता है इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना, मगर कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें करोला में कोई अच्छा कलर भी नहीं होता और उसमें अच्छा स्मेल भी नहीं होता, जिसके वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं होते ऐसे करोला की तरफ। तो बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो फ्लोरल पार्ट्स फिर अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, और वो मॉडिफाई इस तरीके से करते हैं कि दूसरे फ्लोरल पार्ट्स में फिर कलर एकदम ब्राइट हो जाता है, उनमें खुशबू भी आ जाती है। ऐसे अगर स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कैलिक्स अगर करोला के जैसा मॉडिफाई होकर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट अगर कर रहा है तो वो कैलिक्स को कहा जाता है पेटेलॉइड कैलिक्स, यानी पेटल के जैसा काम करने वाला कैलिक्स। मगर यहाँ पर वैसा नहीं होता है, यहाँ पर कैलिक्स ग्रीन कलर का ही होता है और कैलिक्स के जैसा ही काम करता है, इसलिए इसे सेपेलॉइड कैलिक्स कहा जाता है। और ये करोला के नीचे होता है, इसलिए इसे इंफीरियर कहा जाता है। ओहरी सुपेरियर है मगर कैलिक्स इंफीरियर होता है, ये हमेशा ख्याल रखना। ओहरी सुपेरियर है मगर कैलिक्स इंफीरियर होता है। ये जो कैलिक्स होता है इसमें एस्टिवेशन वॉल्वेट होता है। टोटल 5 सेपल्स प्रेजेंट होते हैं और पांचों सेपल्स की जो बॉर्डर होती है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये बॉर्डर कहीं पर भी ऊपर या नीचे नहीं हो रही है, आपस में कहीं पर भी दूसरे पेटल के ऊपर नीचे नहीं हो रही है, साइड बाय साइड होती है। और यहाँ पर हमने पहले इसमें देखा कि ये गैमोसेपेलस कंडीशन है, यानी यूनाइटेड है, यहाँ पर भी उसे बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों बॉर्डर को जॉइंट किया हुआ है, इसका मतलब ये यूनाइटेड कंडीशन है। यूनाइटेड का मतलब होता है गैमोसेपेलस
और ऐसे कंडीशन को या ऐसे फ्लोरल अरेंजमेंट को कहा जाता है वॉल्वेट एस्टिवेशन, यानी मालवेसी के कैलिक्स में वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। अब आता है करोला। करोला में टोटल 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। पांचों के पांचों आपस में फ्री होते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है पॉलीपेटलस कंडीशन। वो इंफीरियर पोजीशन में होते हैं, अलग अलग कलर्स में होते हैं, और इसमें एस्टिवेशन जो होता है वो ट्विस्टेड होता है। अब ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो पेटल की एक बॉर्डर बाहर की ओर है और एक अंदर की ओर है, और सभी पेटल्स में यही सिचुएशन होती है, एक बॉर्डर बाहर होती है और एक बॉर्डर अंदर होती है। एक बॉर्डर अंदर एक बॉर्डर बाहर के वजह से इसे एक ट्विस्ट के जैसा अपीयरेंस मिलता है, इसलिए इसे ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहा जाता है, जो मालवेसी फैमिली में मिलता है। करोला में हमने क्या क्या देखा, 5 पेटल्स प्रेजेंट है, पॉलीपेटलस कंडीशन है, इंफीरियर है, अलग अलग कलर्स में है यानी वेरियसली कलर्ड है, और एस्टिवेशन इसका ट्विस्टेड होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम जो है, ये एंड्रोशियम हम लोग देखेंगे, स्टेमेंस यहाँ पर इनडेफिनाइट होते हैं, यानी इसके जो एंथर्स होते हैं ये एंथर्स इनडेफिनाइट होते हैं। भले वो 5 के नंबर में या 5 के मल्टीपल में हो, मगर बहुत ज़्यादा होने के वजह से इसे इनडेफिनाइट कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये स्टेमेंस है, और ये स्टेमेंस इनडेफिनाइट नंबर में होते हैं। और ये स्टेमेंस जो होते हैं, हमने देखा था कैरेक्टर स्टडी करते वक्त कि एंड्रोशियम टोटल 3 पार्ट्स से बना हुआ होता है, एक स्टेमेंस, एक कनेक्टिव और एक फिलामेंट। अब यहाँ पर ये स्टेमेंस जो है ये सब फ्री है, इनडेफिनाइट है इन नंबर में, मगर इनकी जो फिलामेंट है, यहाँ पर आप लोग देख रहे एक रेड कलर की ट्यूब आप लोगों को दिखाई दे रही है बीच में। ये रेड कलर की ट्यूब जो है ये सभी एंड्रोशियम की यानी स्टेमेन की फिलामेंट जो है वो आपस में यूनाइट हो गई है, और एक स्टेमिनल ट्यूब यहाँ पर फॉर्म हुई है। ये स्टेमिनल ट्यूब जो होती है ये आपस में फिलामेंट्स यूनाइट होने के वजह से फॉर्म हुई है, और एक ही स्टेमिनल ट्यूब फॉर्म हुई है, यानी एक ही बंच फॉर्म हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे मोनो एडेल्फस कंडीशन। व्हेन ऑल फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म a single bunch, it is known as monoadelphous condition. अब यहाँ पर स्टेमिनल ट्यूब जो होती है, ये जो स्टेमिनल ट्यूब फॉर्म होती है, ये स्टेमिनल ट्यूब नीचे की ओर जाकर करोला पर अटैच हो जाती है, और जिस वक्त एंड्रोशियम करोला के ऊपर अटैच होता है उसे हम कहते हैं इपीपेटलस कंडीशन। यहाँ पर इपीपेटलस कंडीशन प्रेजेंट है। ये किस तरीके से है आप देखिए, यहाँ पर ये रेड कलर का हिबिस्कस का फ्लावर है, बीच में येलो कलर के स्टेमेंस है, येलो कलर के स्टेमेंस के नीचे ये स्टेमिनल ट्यूब जो है, ये स्टेमिनल ट्यूब जो नीचे की ओर जा रही है, बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर ये करोला के ऊपर अटैच हो गई है। और ये आखिरी पॉइंट पर क्यों ना हो, करोला के ऊपर अटैच हो गई है, इसलिए इसे इपीपेटलस कंडीशन कहा गया है। अब इसकी जो एंड्रोशियम है इसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो ये रेड कलर का फोटोग्राफ है इसे आप जरा गौर से देखिए। यहाँ पर आप लोगों को ये येलो कलर के एंथर्स या स्टेमेंस दिखाई दे रहे हैं। ये जो येलो कलर के स्टेमेंस है ये सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट से बने हुए हैं, एक ही सेल से बने हुए हैं। एक सेल से बने हुए होने के वजह से इसे कहा जाता है मोनोथिकस कंडीशन, दैट इज वन सेल्ड।
सिर्फ एक ही सेल से बने हुए हैं। ये वन सेल से बने हुए होने की वजह से इन्हें हमने कैरेक्टर स्टडी करते वक्त भी देखा था, मोनोथिकस कंडीशन नाम दिया था इसे। अब कोई भी हिबिस्कस का फ्लावर लो आप, या कोई भी मालवेसी का फ्लावर लो, इसके जो स्टैमेंस होते हैं ना, ये स्टैमेंस फ्लावर के बाहर आते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि जिनके स्टैमेंस करोला के अंदर होते हैं। जिस वक्त फ्लावर के बाहर स्टैमेंस आते हैं, वो कंडीशन को कहा जाता है एक्सट्रोज कंडीशन। एक्सट्रोज यानी बाहर आना। और ऐसे कुछ फ्लावर्स होते हैं कि जिनके स्टैमेंस फ्लावर के अंदर होते हैं, करोला के अंदर होते हैं, उन्हें इंट्रोज स्टैमेंस कहा जाता है। जैसे कि एक्स्ट्रोस्टैमेन जो है ये हिबिस्कस में प्रेजेंट होते हैं, और इंट्रोज स्टैमेंस जो होते हैं वो हमेशा धतूरा में हम लोग देखते हैं। धतूरा के स्टैमेंस ऐसे बाहर निकले हुए नहीं दिखाई देते, वो हमेशा करोला के अंदर ही रहते हैं। ऐसी जो सिचुएशन होती है कि जहां करोला से बाहर स्टैमेंस निकल रहे, उसे एक्स्ट्रोस कहा जाता है। और ऐसे एक्स्ट्रोस कंडीशन हम लोग हिबिस्कस में देखते हैं। एक लंबे से डंडी पर फ्लावर के बाहर इसके स्टैमेंस आते हुए दिखाई देते हैं। और अगर ये जो स्टैमेंस होता है, ये स्टैमेन को कट करते हैं हम लोग, तो ये स्टैमेन के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। और ये पोलन ग्रेन को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो इसकी जो आउटर वॉल होती है, बाहर की वॉल होती है, जिसे एक्साइन कहा जाता है, ये एक्साइन स्पाइनी होती है। इसके ऊपर हल्के हल्के खरोचदार ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पाइनी स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें से निकलने वाले पोलन ग्रेन को स्पाइनोस पोलन ग्रेन या स्पाइनोस पोलन कहा जाता है। ये फैमिली का आइडेंटिकल कैरेक्टर है, स्पाइनोस पोलन। अब तक के मैंने आप लोगों को दो कैरेक्टर्स बताए थे ये फैमिली के जो आइडेंटिकल कैरेक्टर है ऐसा। एक था इपिकैलिक्स प्रेजेंट, दूसरा था पेंटामेरस फ्लावर, और ये तीसरा मैं बता रहा हूं स्पाइनोस पोलन। ये स्पाइनोस पोलन ये फैमिली का आइडेंटिकल कैरेक्टर होता है। अब यहाँ पर एक्चुअल हम लोग एंड्रोशियम पढ़ रहे हैं। ये एंड्रोशियम के ऊपर आप लोग देख रहे हैं टोटल 5 ऐसे वेलवेट के जैसे दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। ये पांचों को अगर हम उंगली से छूकर भी देखें ना, तो बहुत ही मुलायम, महीन और सॉफ्ट ऐसा स्ट्रक्चर, वेलवेट के जैसा स्ट्रक्चर हमारी उंगलियों को फील होता है। ये होता है स्टिग्मा। जब हम गाइनोशियम शुरू करेंगे उस वक्त मैं आपको बताता हूँ, यहाँ सिर्फ एक बार बता दिया, ये स्टिग्मा कहा जाता है। इसके नीचे ये पूरा के पूरा एंड्रोशियम होता है। अब ये जो एंड्रोशियम होता है, ये एंड्रोशियम में मैंने आप लोगों को बताया था कि एंड्रोशियम यानी स्टैमेंस 3 स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। ये फिलामेंट होती है, ऊपर स्टैमेंस होते हैं, और फिलामेंट और स्टैमेंस जहां पर यूनाइट होती है आपस में, उसे कनेक्टिव कहा जाता है। अब ये जो कनेक्टिव होती है, ये कनेक्टिव जहां फिलामेंट स्टैमेन से यूनाइट होती है, उसे उसके ऊपर से स्टैमेंस के अलग अलग पार्ट नाम होते हैं। यहाँ पर डॉर्सल साइड में ये फिलामेंट स्टैमेंस को यूनाइट हो रही है, तो इसे डॉर्सी फिक्स्ड स्टैमेन कहा जाता है। ये नाम याद रखना, डॉर्सी फिक्स्ड स्टैमेंस, यानी डॉर्सल साइड में कनेक्टिव अटैच होती है, इसलिए इसे डॉर्सी फिक्स्ड स्टैमेन कहा जाता है। एमसीक्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इन मालवेसी फैमिली द स्टैमेंस आर डैश डैश, फिर नीचे ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको डॉर्सी फिक्स्ड ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर हम लोग स्टडी करेंगे गाइनोशियम। गाइनोशियम स्टडी करने से पहले हमारा समय फिनिश होने में आ रहा है, आपका केमिस्ट्री का लेक्चर है। हमने रूट से लेकर तो एंड्रोशियम तक मालवेसी फैमिली को आज स्टडी किया। इसमें से आप लोगों को कोई डिफिकल्टी है? नो सर।
हम लोग अभी हेलो हेलो यस बोला अजित सर मला प्रॉब्लेम आहे की मला एका जणाने विचारलं होतं प्रश्न की बोला एकाच झाडावरचं असतं तर बाकीचे झाडं आम्ही पाहिलेली होती की त्या ठिकाणी 5-6 रंगाची वेगवेगळे फुलं कसं काय अरे बाळ निर्माण हळू आवाजात बोल, हळू आवाजात बोल, बोल बोल. हॅलो हाँ बोल ना. एकच हेलो सर जी वो हाँ वो ऐसा पूछ रहा है कि एक पेड़ पे अलग अलग कलर के फ्लावर कैसे होते हैं? कौन सा प्लांट फ्लावर? आपल्या समजा गुलाब असो किंवा आपण पाहून राहिलेलो असो वेगवेगळ्या रंगाचे एका झाडावर पाहिलेले बेटा आवाज येत नाहीये बरोबर. एक काम कर, तुझा प्रश्न प्लांट्स का नाम नहीं बोल रहा वो. हाँ? वो प्लांट्स का नाम नहीं बोल रहा, सिर्फ गुलाब बोल रहा उसने, गुलाब. ओके ओके. बघ प्रश्न क्लिअर समजत नाहीये. फक्त एक काम करशील, तुझा प्रश्न व्हॉट्सअप ग्रुप वरती टाइप करून ठेवून दे. मी उद्या त्याचं उत्तर देतो तुला, कारण आता वेळ संपत आलेला आहे. केमिस्ट्रीचे सर वाट बघत असतील. ओके थँक्यू. हो हो चालेल चालेल हो हो